set A and B be any two sets, then their Cartesian product is a set of all possible ordered pair whose first element is from set A and second element is from set B. So remember, this A cross B is also a set. And how we can define this? This is a ordered pair where A comes from the first set and B is from the second set. If we want to write B cross A, it's not necessarily same as A cross B, because B cross A mean B comma A, where B is coming from the set B and A is coming from the set A. Okay. So section A, now you are moving into the next topic, that is function and relation, which involve this cross product. That's why we are reading all this. मैम ये कुछ समझ में नहीं आया. B belongs to A belongs to B. ये मैम सेकंड वाला B cross A. Yes मैम. B cross A means the first element is from the B set and the second element is from the second set. Oh, okay. It is just to know that कि if A cross B is A comma B, then B cross A means B comma A. और फर्स्ट एलिमेंट हमेशा फर्स्ट सेट से होगा, सेकंड एलिमेंट हमेशा सेकंड सेट से होगा. ओके, सो वी डू few properties. लिखिए आप, prove that A cross B intersection C is equals to, prove that A cross B intersection C is equals to A cross B intersection A cross C. लिखा. And the second one is A cross B union C is equals to A cross B union A cross C. If we want to prove this, we just have the same proof like we have did earlier, that we always take some element. तो पहले हम क्या एलिमेंट लेते थे? X, but we were talking about a set, but now we are talking about a ordered pair, so we always take X comma Y और A comma B. Okay, या तो आप ये ले सकते हैं या A comma B ले सकते हैं. You have to take ordered pair. So if we take A comma B for all belongs to the left hand side A cross B intersection C, then now you have to define this definition. क्या definition है ordered pair की? ये एक सेट है, ये पूरा सेट है, तो A belongs to the capital A and B belongs to B intersection C. This implies A belongs to A, B belongs to B and B belongs to C also, क्योंकि B जो स्मॉल b एलिमेंट है वो B इंटरसेक्शन C सेट में मौजूद है. इसका मतलब वो उन दोनों में ही है. If we take set A and set B first, then we can say A comma B, if we take the ordered pair, is a part of A cross B, and if we take A comma B, that is also a part of A cross C. क्यों? क्योंकि A में भी small a element belongs to the A and small b element belongs to the B. That's why we can say that A comma B belongs to A cross B intersection A cross C. तो ये कहाँ लेके चले थे हम? लेफ्ट हैंड साइड में, और कहाँ ले आए? राइट हैंड साइड में. दैट्स मीन
LHS is a subset of RHS. तो आपको प्रूव करने का तरीका, हाँ बेटा, तो एक मिनट में बात खत्म कर लूं। अपना प्रूव करने का तरीका बिल्कुल वही है, बट वहां पर हम क्योंकि सेट की बात करते थे इसलिए एक सिंगल एलिमेंट लेते थे। यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं बिकॉज इट इज इन्वॉल्विंग टू सेट। तो यहाँ पे टू सेट कौन कौन से, एक सेट ए है और एक सेट बी इंटरसेक्शन सी है। तो जब हम दो सेट के क्रॉस प्रोडक्ट की बात करेंगे तो हम यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर लेंगे। हाँ बेटा, अब बोलो, पूछो। मैम क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा हम दो ही एलिमेंट लेंगे, जैसे x, y और a, b, हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट में। हाँ, अगर यहाँ पे एक और क्रॉस लगा दूं मैं और डी लिखती तो हम a, b, c या d ले लेते। ओके, मतलब जिन जिन के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट होगा सिर्फ उन्हीं के एलिमेंट्स लेंगे। हाँ बिल्कुल, उन्हीं के एलिमेंट। एनी अदर क्वेश्चन? Ma'am, please explain from third step. कौन सा स्टेप बोल रही हो? यहाँ? Yes, ma'am. सो देखो, ए जो स्मॉल ए एलिमेंट है वो कहाँ है? सेट ए में। और स्मॉल बी एलिमेंट कहाँ है? Set B. सेट बी में। तो क्या ए कॉमा बी ए क्रॉस बी में होगा? क्या ए कॉमा बी ए क्रॉस बी का पार्ट है? Yes, ma'am. अगर स्मॉल ए कैपिटल ए में है, स्मॉल बी कैपिटल सी में है, तो क्या ए कॉमा बी ए क्रॉस सी में होगा? Yes, ma'am. ए कॉमा बी ए बी में भी है, ए कॉमा बी ए क्रॉस सी में भी है, तो क्या उनके इंटरसेक्शन में भी Intersection में होगा। ओके? Yes, ma'am. Okay. तो आप इसे लिख लीजिए और इसको लिखने के बाद हम रिवर्स में प्रूव करेंगे यही 5 स्टेप। सो वी स्टार्ट ए कॉमा बी फ्रॉम हेयर, वी टेक ए कॉमा बी हेयर, और फिर हम क्या करेंगे, रिवर्स ऑर्डर में यही 5 स्टेप लिखेंगे एंड वी प्रूव दैट LHS RHS both are equal. तो द प्रोसेस ऑफ प्रूविंग इट सेम, वो प्रोसेस बिल्कुल सेम ही है। अब आप सो रिवर्स भी प्रूव कर लीजिए। इफ एनी डाउट देन यू कैन आस्क। हाँ जी मैम, तो ये मतलब पहले से पता है हमको कि अगर कोई एलिमेंट ए सेट में है और बी सेट में है तो वो उनके क्रॉस प्रोडक्ट में ए और बी दोनों होंगे। हाँ, लिख सकते हैं। तुम क्लास सेक्शन ए की हो, बी सेक्शन का हम एक स्टूडेंट ले आए, तो हम कहें कि स्टूडेंट 1 कॉमा स्टूडेंट 2 इज बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। तो पहला स्टूडेंट हमेशा इस ग्रुप का कहाँ से होगा? सेक्शन ए से। और दूसरा स्टूडेंट कहाँ से होगा? सेक्शन बी से। मतलब ये सीक्वेंशियल है, मतलब जैसे जैसे हाँ बिल्कुल। तुमने देखा नहीं मैंने डेफिनेशन में क्या लिखवाया? ऑर्डर्ड पेयर ए क्रॉस बी। देखो मैंने क्या लिखवाया, मैं उसको समझाते भी हूँ। मैंने कहा ए क्रॉस बी इज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ऐसा बोला ना मैंने। ऑर्डर्ड पेयर where first element is always belongs to the first set and second element is from the second set। तो a कॉमा b का ऑर्डर्ड पेयर का मतलब है कार्टेशियन प्रोडक्ट। यहाँ पे हम गुणा तो नहीं कर सकते क्योंकि सेट के एलिमेंट है 1 2 3 और सेट b के एलिमेंट है सपोज a b c। सो व्हाट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दिस? a क्रॉस b क्या होगा? 1 कॉमा a 1 कॉमा बी
1, C, 2, A, 2, B, 2, C, ठीक है। फिर 3, A, 3, B, 3, C, ठीक है, समझ गए? यस मैम। सो प्रूव लिखा आपने? यस मैम लिख लिया। हम्म, ये यूनियन वाला नहीं। हाँ, वे यूनियन वाला मैं कराऊंगी। तो मैम आपने पूरा, हाँ बेटा, मैम जो अभी आपने इंटरसेक्शन वाला करवाया है उसका रिवर्स आपने कैसे बताया, एक बार रिपीट कर रिवर्स दीजिए। मैंने ये कहा, देखो हर किसी का रिवर्स का एक ही प्रोसेस है बेटा। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड इज राइट हैंड साइड सबसेट प्रूव कर देते हो तो आपको क्या करना है, आपको ये स्टेप्स तो आपने अपने आप लिखे, इसमें कोई डाउट नहीं है आपको। तो अब जब आप रिवर्स लिखेंगे तो आपको ये वाले स्टेप से, जहां से आप एलिमेंट सपोज करते हो, है ना, और प्रूव करते हो, ये स्टेप 1, 2, 3, 4, है ना। और यहाँ पहुंचे तो अपन इसको 1 से मैं कहूँ 2, 3, 4 और 5, ये 5 स्टेप यहाँ से आप रिवर्स में उल्टा लिख देंगे ऐसा, यानी कि ये आपके लिए 1 बन जाएगा जो 5 है। अब 5 बिकम 1, 4 बिकम 2, 3 बिकम 3 एंड 4 बिकम 2 बिकम योर 4 एंड 1 बिकम योर 5। ऐसा उल्टा इसको लिख दोगे तो क्या बन जाएगा, राइट हैंड साइड इज अ सबसेट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। आपने पिछले वाले क्लास में क्वेश्चन नहीं किए थे क्या मेरे साथ? किए थे मैम। अच्छा, तो इस तरीके से हम ये प्रूव करते हैं। तो चाहे तो आप दोबारा भी लिख सकते हो पूरा समझ के इसको, और नहीं पूरा समझ के लिखना चाहते तो आप सिमिलरली ये लिख दीजिए, ये एक ही बात है, ठीक है। अब मैं एक यूनियन वाला आपको प्रूव करके बताती हूँ, और यूनियन वाला चलो मैं दोनों प्रूव कर दूंगी, बस आप मेरे साथ करते जाइए। सेकेंड प्रॉपर्टी आप साथ साथ करते जाइए एंड वी डिस्कस इट, एंड मैं करूंगी, आप बताते जाइए। ए यूनियन बी इक्वल टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट करेंगे आप? चलो कोई एक जना स्टार्ट करो, बताना। ऐसा जो फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू अरे ए। ब्रिज किशोर, तुम तो बहुत एक्टिव पार्टिसिपेंट हो, थोड़ा बाकी लोग जो नहीं आ पाते, बात कर पाते, मैं चाहती हूँ कि थोड़ा वो लोग पार्टिसिपेट करें क्लास में, और वो लोग भी पार्ट लें और उनको भी इंटरेस्ट आए पढ़ने में। अगर नहीं आ रहा तो हम कुछ और सोचें। कौन बताएगा? दक्ष, Daksh, are you there? Yes, ma'am. Are you okay with it? Can we start with you? Yes, ma'am. Okay. So now you speak and I will write it. जहाँ गलती करोगे, I will correct it. हाँ. So what is our first step? So we write here proof and then we start. हाँ, बताओ क्या लिखेंगे? Ma'am, A belongs to A and B belongs to B union C. First of all we take, हम ऐसा लिखेंगे for all A, B belongs to A cross B union C. फिर अगली लाइन लिखेंगे हम A belongs to A, है ना, and B Yes, ma'am. belongs to B union C. अब आगे क्या लिखेंगे? A belongs to A and B belongs to B or B belongs to C. B belongs to B और B belongs to C. शाबाश, आगे Then A and B belongs to both A. A comma A belongs to set A, है ना, and B belongs to B. So A comma B can belong to A cross B. Yes. Okay. Or if A belongs to A and B belongs to C, then also A comma B belongs to A cross C.
यस मैम। आ गई बात समझ में? तो ए कॉमा बी, अगर बी जो है वो बी में है तो ए कॉमा बी ए क्रॉस बी में होगा। अब क्योंकि स्मॉल ए तो बिल्कुल 100% आई एम श्योर है कहाँ है, ए में। सिर्फ स्मॉल बी ही ऐसा है जो बी यूनियन सी में है, तो वो दोनों में हो सकता है। यस, वो दोनों में हो सकता है तो भी बी यूनियन सी में होगा। वो दोनों में नहीं है, एक यहाँ है बी, मान लो सी में नहीं है तो भी वो बी यूनियन सी में होगा। वो यहाँ नहीं है, वो सी में है तो भी वो कहाँ होगा, बी यूनियन सी में होगा। तो चाहे बी में हो, चाहे स्मॉल बी सी में हो, चाहे बी इंटरसेक्शन सी में हो, तीनों ही केस में उनके यूनियन में तो होगा ही होगा। दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग और हियर। So if A comma B belongs to A cross B, A comma B हेलो, सॉरी कनेक्शन चला गया, लाइट चली गई तो बंद हो गया इंटरनेट। कहाँ तक सुना? ए बी में ए, ये ये रिवर्स, एलिमेंट बी यूनियन सी में भी बिलोंग करेगा। हाँ ये पूरा लिख लिया था, हो गया था मैम, हो गया। है ना? हाँ ठीक है। रिवर्स पे थे हम। रिवर्स, मैम आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है। हाँ बेटा आई एम शेयरिंग इट बिकॉज अभी वो लाइट चली गई तो सारा सेटिंग ही चेंज हो गया। Now look at the reverse. So यस मैम, स्क्रीन विजिबल।
शिट, फिर से कनेक्शन चला गया था। दिख रहा है तुम्हें? यस मैम। यस मैम, दिख रहा है। A क्रॉस B इंटरसेक्शन C क्रॉस D इक्वल टू A इंटरसेक्शन C क्रॉस B इंटरसेक्शन D। सो LHS के लिए लेट्स टेक A क्रॉस B। मैम हाँ जी, मैम हम ये प्रूव नहीं कर रहे थे। अच्छा, हम कहाँ थे? A पीछे क्रॉस थे। B यूनियन C इक्वल्स टू A क्रॉस B यूनियन। पूरा नहीं हुआ वो। ओ यार, इतनी मैम बार आपका लाइट जा स्टार्टिंग रही। में ही चली गई थी। अरे बड़ी मुसीबत है, पता ही नहीं चल रहा, बार बार लाइट चल रही है। कल रात को भी पूरी टाइम लाइट नहीं थी, तो पता ही नहीं चल रहा। देखो अभी से यहीं थे ए यूनियन बी वाले पे। यस मैम। लिखो यार, कहाँ थे हम? अब जहां तुम्हें दिक्कत है वहां से पूछ लो। मैम आप रिवर्स करवा रहे थे। अच्छा, रिवर्स करा रही थी, तो मैं शायद रिवर्स खुद ही लिख रही थी अब की बार, है ना? यस मैम। और हम्म, चलो मैं दोबारा उसको लिखती हूँ। हम कहाँ थे? तो मैं आपको समझा रही थी कि ए कॉमा बी जो बिलोंग करता है किसको, कनेक्शन गया क्या? कनेक्टेड ना? ओके, सो ए हम सेकेंड वाला प्रूव कर रहे थे, और हम ये प्रूव कर रहे थे कि ए कॉमा बी हमने कहाँ एग्जिस्ट कराया था? ए क्रॉस बी में। एंड ए क्रॉस बी क्या लिखा था? यूनियन ए क्रॉस सी। तो हमने कहा ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, और ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी। Then this implies A belongs to set A, B belongs to set B, or A belongs to A, B belongs to set B. In both the condition, एलिमेंट A तो A में ही बिलोंग करता है, सिर्फ B के साथ है कि या तो B कैपिटल B में है या C में है। If we take their union, B exists in their union, so that we can say A comma B will lie in A cross B union C. This implies A cross B union A cross C is a subset of A cross B union C. That's RHS is a subset of LHS. Okay, this is reverse. मैम एक बार इसका स्टार्टिंग का दिखाना। ये देखो, ठीक है, लिख लिया? मैम अभी नहीं लिखा, 1 मिनट। हम्म, लिख लिया मैम। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखो, प्रूफ
A cross B, A cross B intersection C cross D equal to A intersection C cross B intersection D. So how we start it? We can take A comma B belongs to the left hand side, that is A cross B intersection C cross D. Okay. Then what would be the next line? चलिए आप बताइए next line क्या होगी? A belongs to A comma B. A No. सबसे पहले इस इंटरसेक्शन के बारे में लिखेंगे. A comma B belongs to A cross B. इंटरसेक्शन का मतलब and A cross B belongs to C cross D. cross D. अब हम इसको अलग अलग करेंगे. This implies A belongs to A, B belongs to B, and A belongs to C, B belongs to D. belongs to D. अब देखो A कहाँ है? स्मॉल ए एलिमेंट A में, A कहाँ है? C में. यानी A किसको बिलोंग करता है? A को भी बिलोंग करता है, C A intersection C. इसी एंड और क्या कह सकते हैं हम? B belongs to B intersection D. D. इसका मतलब हम कह सकते हैं A कॉमा AB B इनके A Intersect. इंटरसेक्शन से B इंटरसेक्शन D को बिलोंग करेगा. ठीक है, ऐसा हम कह सकते हैं. अब हम लेके तो इसे कहाँ चले थे, कहाँ ले आए, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज द सबसेट ऑफ राइट. अब जब हम रिवर्स की बात करेंगे तो आप, मैं इधर लिखती हूँ. अब हम जब रिवर्स की बात करेंगे तो सेम यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे कि हम ले लेंगे कि A कॉमा B जो एलिमेंट है वो A इंटरसेक्शन C में है और B इंटरसेक्शन B में है. राइट. अब हम अगली लाइन क्या लिखेंगे, क्योंकि यानी ये एक सेट है, ये एक सेट है, बिलोंग कर रहा है कहाँ? इनके. तो जो A है वो A इंटरसेक्शन C में है और जो B एलिमेंट है वो कहाँ है? B इंटरसेक्शन D में. यानी A दो जगह है. कहाँ है? A में. और A कहाँ है? C में. B कहाँ है? कैपिटल B में. और B कहाँ है? कैपिटल D में. तो क्या हम A भी ले सकते हैं? यस. तो A कॉमा B कहाँ ले लें? A क्रॉस B में. और दूसरा A कॉमा B कहाँ ले लें? C क्रॉस D में. तो क्या हम A कॉमा B को उनके यूनियन या इंटरसेक्शन में ले सकते हैं, क्योंकि वो दोनों में ही है? Yes. ले सकते हैं. तो हम कहेंगे राइट हैंड साइड इज द सबसेट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड. लिख लो आप दोनों. तो इस तरीके से आप रिवर्स भी प्रूव कर सकते हैं. तो आपको ये इधर राइट हैंड साइड तो ये लिखने की अलग से जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यही इसी के रिवर्स स्टेप होते हैं. फिर भी मैंने आपको समझा दिया कि हम कैसे करते हैं. तो पहले आप ये वाला साइड लिख लीजिए, फिर हम वो वाला साइड लिख लेंगे. रिवर्स साइड दिखाना.
चले आगे। एक मिनट में बस एक चलो अब आगे चलो और छोटे से एक आध एग्जाम्पल करते हैं हम। लिखो आप फाइंड एक्स एंड वाई। क्वेश्चन लिखो आप, छोटे से एग्जाम्पल्स हैं ये। फाइंड एक्स एंड वाई if 2x comma x plus y equal to 6 comma 2। क्या आएगा x और y, बता सकते हो? मैम एक्स तो आएगा 3 एक्स 3 और वाई आएगा -1। वेरी -1। गुड, वेरी गुड। 2x equals to 6, तो x equals to 3। सिमिलरली x plus y equals to 2, तो हम y का वैल्यू निकालेंगे। 2 minus 3 gives you -1। तो अब आपको पता चल गया कि कहाँ काम आते हैं ऑर्डर्ड पेयर, इस तरीके के प्रॉब्लम्स में काम आते हैं। चलिए x plus 2, 4 is equal to 5, 2x plus y। मैम x equals to 3 -2 -2y। वेरी गुड, ठीक है। चलो एक और छोटी सी मैं तुम्हारी टेस्टिंग और करती हूँ इस चीज की कि क्या तुम ऑर्डर्ड पेयर का कंसेप्ट समझे। तो लिखो इफ p, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। इफ p इक्वल्स टू 1, 2 एलिमेंट है, तो राइट p क्रॉस p क्रॉस p। बता सकते हो? मैम बता तो सकते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। टाइम लगेगा। मैम अच्छा 1, मुझे 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2। नो मैम 1,1,1 1,1,2 1 मैम ऐसे सिमिलरली प्रोसीड करते हैं। यस हाँ, बिल्कुल। yes। कितने कितने पेयर, कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे बता सकते 8 हो? 8। 8 शाबाश। बनेंगे 4 into 2। बिकॉज टू एलिमेंट है और कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो? 3 3 टाइम्स। बार है। तो 1, 1, 1, 1, 1, 2, then again 1, 2, 1, then it would be 1, 2, 2, फिर बनेगा 2, 1, 1, फिर बनेगा 2, 1, 2, फिर बनेगा 2, 2, 1 और फिर बनेगा 2, 2 2 2। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, समझ गए आप? चलो छोटी सी इसी बात पे एक और टेस्टिंग हो जाए। इफ ए हैज 3 एलिमेंट, इफ ए हैज 3 एलिमेंट, कोई भी हो सकता है, ये तो मैं ऐसे ही लिखती हूँ, एंड बी 3, 4, 5, find the number of element in A cross B। मैम 9। 9। शाबाश, yes। So this is Na into Nb, 3 into 3। चलिए तो हम आगे लिखते हैं। लिखिए आप पार्टीशन ऑफ सेट्स। पार्टीशन ऑफ सेट्स ये लिख लिया है तुमने? एग्जांपल्स अपनी कॉपी में नोट कर लिए ना? मैम अभी नहीं किया, अभी कर रहे हैं। करो करो, जल्दी करो, फिर पीछे रह जाओगे। जल्दी हाथ क्या लिखते जाया करो।
देखा ना, लिख ही नहीं पाए। अरे बाकी किसी ने भी नहीं लिखा क्या? मैम लिख लिया। लिख लिया ना यार, देखो सब कितने स्मार्ट हैं, फटाफट लिख लेते हैं। देखो तुम टाइम वेस्ट करोगे तो कैसे काम चलेगा। लिखो। पार्टीशन ऑफ सेट्स, और फिर हम पढ़ेंगे एक और चीज, मिन सेट, मैक्स सेट एंड प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी। उसके बाद हम रिलेशन या फंक्शन में से कोई भी एक टॉपिक और स्टार्ट लिख लिया मैम। थैंक गॉड कि तुमने लिख लिया। अब मैं तुम्हें डेफिनेशन बताऊंगी पार्टीशन ऑफ सेट की। चलो नए पेज पे ही लिख लो तुम तो। लिखो पार्टीशन ऑफ सेट्स, पार्टीशन PARTITION, पार्टीशंस ऑफ सेट्स। पार्टीशंस ऑफ सेट का मतलब तुम समझ गए, एक सेट है और हम उसके बहुत सारे सबसेट बना देते हैं, तो वो वापस उसको ही डिनोट करता है, उसके पार्टीशंस को। लाइक आपके पास एक सेट है A और इसके पास 3 एलिमेंट है 1 2 3, तो आप क्या लिखोगे, सबसेट कितना आएगा इसका, एम्प्टी सेट को छोड़ के 1 2 3 1, 2 3, 1 2, 3 एंड 1 2 3। तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। अगर हम मैं इसे A1 कह दूं, इसे A2, इसे A3, इसे A4, इसे A5, अरे ये क्या नहीं, A5 A6 A7, तो A1 यूनियन A2 यूनियन A3 अप टू A7 क्या बन जाएगा वापस A, और ये सब इसके क्या कहलाएंगे, पार्टीशंस कहलाएंगे। बात समझ में आई तुम्हें? अगर हम एक नॉन एम्प्टी सेट ले लें A और उसके नॉन एम्प्टी सबसेट सबसेट का यूनियन अगर हम लें तो वापस A आ जाता है। तो ये जो सबसेट्स हैं ये क्या कहलाते हैं, ये पार्टीशन ऑफ सेट्स कहलाते हैं। ओके, अब मैं तुमको ऑफिशियल डेफिनेशन लिखवाती हूँ समझाने के बाद, है ना, लिखवा। A partition of a non-empty set, a partition of a non-empty set A is a collection of subsets. मैम एक बार रिपीट कर दो ना, आपकी आवाज कट गई थी बीच में। ओके बेटा, डेफिनेशन ऑफ पार्टीशन सेट्स लिखवा रही हूँ मैं, लिखो। A partition of non-empty set, non-empty मतलब उसमें एलिमेंट होना जरूरी है। A partition of a non-empty set A is a collection of subsets A1, A2 dash 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 up to AN such that A1 union A2 dash 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 union AN is equals to A and AI intersection AJ is phi. ठीक है, अब देखो ये सब जो हमने इतने सारे यूनियन बनाए, ये ए तो सबसेट का यूनियन ए वापस आ जाएगा, क्या ये सब पार्टीशन कहलाएंगे? तो यहाँ पर एक कंडीशन है
कि आई जो है जे के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि उनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो ये जो हमने यहाँ पे 7 सबसेट्स लिखे हैं, उनमें से सिर्फ ऐसे 3 सेट है 1 2 3 जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। और कौन है ऐसा? और कोई है क्या ऐसा? कोई नहीं है अब तो। देखो 1 2 3 ऐसा है जिसमें कुछ कॉमन नहीं है, और 1 का 2 3 1 एक ले लो और 2 3 ले लो तो भी इनमें कुछ कॉमन नहीं है। इसी तरीके से 3 ले लो और 1 2 ले लो, इनमें भी कॉमन नहीं है। तो ये सब क्या कहलाते हैं? पार्टीशन ऑफ सेट ए। ठीक है। मैम ये अब सेकंड ये पॉइंट का क्या मतलब हुआ? सेकेंड पॉइंट का मतलब हुआ कि इनमें कुछ कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए। जैसे आपने A5 है आपका 3,1 है ना, और A6 है आपका 2 3, तो दोनों में 3 कॉमन है ना। Yes, 3 कॉमन, तो ये 3 कॉमन है, इसलिए A5 और A6 एक साथ पार्टीशन नहीं कहलाएंगे। ये पार्टीशन कब कहलाएंगे? जब 3 1 के साथ में ये तो 2 आ जाएगा तो ये तीनों ही अलग अलग हो गए, या 2 3 के साथ में 1 आ जाएगा तो ये पार्टीशन कहलाएगा। तो जब हम पेयर में कंसीडर करेंगे तब उनमें कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। हाँ, ये भी कंडीशन Okay. आपको पार्टीशन के लिए याद रखनी पड़ेगी। ओके मैम। मैम डिसजॉइंट सेट्स। हाँ, यू कैन से डिसजॉइंट सेट्स। हाँ बेटा, जो नल सेट होता है, जो फाइव जो अपन कंसीडर करते हैं नल को सबसे, तो यार लेना ही नहीं है, यूज ही नहीं नहीं करना, लेंगे। नल बिल्कुल कंसीडर ही नहीं करना। नॉन एम्प्टी, अपन ने पहली लाइन लिखी नॉन एम्प्टी, यानी कि कम से कम एक एलिमेंट तो उसमें है ही है ना। मैं ये बोल रहा हूँ कि सबसेट में अपन एक नल सेट भी तो लेते हैं ना, जो फाइव सेट वो होता या है। वो भी नहीं लेना है। और अगर अपन इनको सिंगल सिंगल कंसीडर करेंगे तो अपन सारे सेट्स को पार्टीशन लिखेंगे ना सिंगल सेट का। हाँ बिल्कुल। मैम 5 ही तो सबसेट होता है सेट का। अरे तुमको डेफिनेशन समझ में नहीं आती क्या? बट इट हाँ इज नॉट अ नॉन पार्टीशन। हाँ नो पार्टीशन करना है तो उसमें कंसीडर नहीं करेंगे। नहीं होगा। हाँ, बाकी सबसेट होता है वो तो एक अलग कहानी है, इसीलिए तो मैंने ऊपर 7 ही लिखी, वरना मैं 8 नहीं लिखती है। 8। अच्छा, एक और डेफिनेशन आप लिखो यहाँ पे, मिन सेट। मिन सेट क्या है पहले तो मैं समझा देती हूँ, आप डेफिनेशन देखो इससे पहले। ये एक हमारे पास यूनिवर्सल सेट है ए, या कुछ भी मान लो, ए सेट मान लो। अब हमारे पास 2 सेट है जो इसके सबसेट है, ये B1 है और ये B1 सेट है और ये B2। ये इनके बीच का एक कॉमन पोर्शन है। ये तुम्हें पता है क्या है? B1 माइनस B2 पता है ना आपको? ये Yes, कौन सा ma'am. पोर्शन है? B2 B2 माइनस minus B1 B और इंटरसेक्शन ये जो बीच की कहानी है ये B1 इंटरसेक्शन B2। ठीक है। अगर मैं इस पोर्शन को D1 कह दूं, इस पोर्शन को D2 कह दूं, इस बीच वाले पोर्शन को D3 कह दूं, बचा हुआ रिमेनिंग D4 है। ठीक है, बचा हुआ D4 है। तो ये कहता है कि ये जो D1 D2 D3 D4 हमने जो पोर्शंस बनाए हैं, इन पोर्शंस को हम मिन सेट कहते हैं। ओके, तो दिस D1 D2 D3 4 आर कॉल्ड मिन सेट। क्योंकि मैम D1 D2 और D3 तो D4 का ही पार्ट है ना एक। हाँ। और सबसे बड़ा सेट D4 है। सो अगर मैं D1 बताऊं तो आप क्या कह सकते हैं? B1 माइनस B2 D1 है, जिसको हम क्या कह सकते हैं? B1 इंटरसेक्शन B2 कॉम्प्लीमेंट, ऐसा भी कह सकते हैं। याद है ना आपको? ये सब कॉम्प्लीमेंट वाली डेफिनेशन भी याद है ना? यस मैम, यस B2 मैम। का मतलब B2 माइनस B1 और इसका मतलब हुआ B2 इंटरसेक्शन B1 बार। तो इस तरीके से हम ये लिख सकते हैं और ये मिन सेट कहलाते हैं। अब इंग्लिश में डेफिनेशन लिख लो, क्योंकि इंग्लिश की मैं फिर सेट की डेफिनेशन तो कंफ्यूज होता है, इसलिए मैंने पहले
फिगर से समझा दिया है कि मैं जो लिखवा रही हूँ उसका क्या मतलब है, सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। अब आप डेफिनेशन लिखो। लेट B1 B2 be subset of a non-empty set A. Let B1 B2 be subset of a non-empty set A. Then the minimum set generated by the collection B1 comma B2 dash 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 is a set of type बाय कलेक्शन के बाद क्या था मैम? बाय द कलेक्शन। कहाँ थे, एक बार दोबारा बोलो, क्या कह रहे हो? By the the collection. collection B1 B2 by a collection B1 B2 dash 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 is a set of type D1 intersection D2 intersection D3 dash dash dash, जो भी एलिमेंट जहां तक हो, where DI is equals to BI or B dash I. मैम VI और BI डैश, या तो वो B1 B2 से बना होगा या उनके डैश से बना होगा। ठीक है, अभी डोंट लीव द क्लास, आई विल टेक अटेंडेंस। So officially class is over at 1:50, but I'll take attendance by stopping the class. 43 student is there.